नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। आलमी ख़बरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। ईरान के साथ जंग 60 रोज़ा डेडलाइन पहले ख़त्म हो गई। ट्रंप इंतज़ामिया का दावा, मैंने 8 जंगें रुकवाईं और कई मिलियन लोगों की जान बचाई। ट्रंप का नया दावा। आबनाए हरमुज़ को आबनाए ट्रंप करार देने पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा की अमरीकी सदर ट्रंप पर सख्त तनक़ीद, कहा यह संगीन गलती है। आलमी मंडी में तेल $126 फी बैरल तक पहुंच गया। आलमी मईशत की कमज़ोरी बेनकाब, महंगाई का दबाव दोबारा बढ़ गया। खलीज फ़ारस का मुस्तक़बिल अमेरिका की मौजूदगी के बगैर रोशन होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनेई का नया बयान। ईरान के साथ जंग और हालिया बरसों में दीगर फ़ौजी तनाज़ात के नतीजे में इस्तेमाल करदा अमरीकी असलाह ज़ख़ायर की बहाली में वक्त लगेगा। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा पीट हेग्सेथ का एतराफ़। थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। ट्रंप इंतज़ामिया ने दावा किया है कि ईरान के साथ जारी जंग अप्रैल के अवाइल में होने वाली जंगबंदी के बाद ख़त्म हो चुकी है। इत्तलात के मुताबिक इस कानूनी तशरीह का मकसद व्हाइट हाउस को इस ज़रूरत से बचाना है जिसके तहत इसे किसी भी फ़ौजी कार्रवाई के लिए अमरीकी कांग्रेस से बाकायदा मंजूरी लेनी पड़ती है। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा पीट हेग्सेथ ने सेनेट में इस मौक़िफ़ की तायद की कि जंगबंदी ने मौसर तरीके से जंग को रोक दिया है। इस मंतिक़ के तहत ट्रंप इंतज़ामिया का ख्याल है कि वो 1973 के वार पावर रेजोल्यूशन की खिलाफ वर्जी नहीं कर रही है, जो सदर को पाबंद करता है कि वो 60 दिन से ज़ायद जारी रहने वाली किसी भी फ़ौजी कार्रवाई के लिए कांग्रेस से रुजू करे। एक आला सरकारी एहलकार ने कहा कि जंग अब ख़त्म हो चुकी है क्योंकि 7 अप्रैल से शुरू होने वाली जंगबंदी के बाद दोनों अफवाज के दरमियान फायरिंग का कोई तबादला नहीं हुआ है। अगरचे ईरान ने अब भी आबनाए हरमुज़ पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखी है और अमरीकी बहरिया ने ईरानी तेल के टैंकर्स रोकने के लिए नाकाबंदी रखी है, लेकिन व्हाइट हाउस ने इसे फ़ाल जंग नहीं मान रहा है। ट्रंप ने अपने ताज़ा बयान में दावा किया है कि अगर उन्होंने 8 जंगों को रोकवा दिया है और कई मिलियन लोगों की जान बचाई है। One would have been Pakistan, India. The Prime Minister of Pakistan said, I saved from 30 to 50 million lives, but it could have been more than that. 2 nuclear nations were going at it. 11 airplanes were shot down. They were in the first week of what would have been a very bad war, and I got it solved. You know how I got it solved? By the use of tariffs. I said, I'm going to charge you tariffs if you guys keep fighting, and they said, "Oh, please don't do that." You just lifted some tariffs, right? You just lifted some tariffs on whiskey. Is that correct? Yeah. What I'm doing is for as long as I've been here, they've wanted to. You know, Kentucky, which is a great place, and I also won Jason by a lot, but Kentucky with the bourbon, and Scotland with the whiskey, and they've had trade for years and years and years, and a lot of restrictions, a lot of different restrictions took place that didn't amount to much, and it really stopped them. I don't know if you know, it's a barrel trade. They use the barrels from the one to take care of the other, and the barrels are only good for one unit. In other words, they can't be used twice. They can only be used once, but the once makes it a better substance. I'm not a big drinker, so forgive me, but it makes them a big substance and a better taste. But they dealt for years. This was Scotland and Kentucky, mostly Kentucky, and I just took all the restrictions off, so Scotland and Kentucky can start dealing again. And I did it in honor of the king and queen who just left. They're heading back. It was a big deal. They've been trying to get this for a long time. Yes, you talked about possibly pulling out some troops out of Germany. Would you be considering the same thing for Spain and Italy? I mean, they haven't been exactly on board. Yeah, probably. Yeah, I probably will. Why should I? You know, look, why shouldn't I? Italy has not been of any help to us, and Spain has been horrible, absolutely horrible. You know, it's NATO. It's not even the fact that they're bad. It's one thing if they said nicely. ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को आबनाए हरमुज़ से मुताल्लिक़ बयान पर अपने ट्वीट में जवाब दिया है। साथ ही अब्बास इराक़ची ने एक्स पर डोनाल्ड ट्रंप की पुरानी वीडियो भी लगाई है जिसमें ट्रंप ने गलती से आबनाए हरमुज़ को आबनाए ट्रंप करार दिया था, फिर कहा था कि बड़ी गलती हो गई। इसके अलावा अमरीकी सदर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर आबनाए हरमुज़ का नया नक्शा भी शेयर कर दिया है जिसमें आबनाए हरमुज़ को आबनाए ट्रंप का नाम दिया गया है। अब्बास इराक़ची ने कहा कि अमरीकी सदर पेंटागन की घड़ी हुई इस्तिलाह के बजाय खलीज फ़ारस के दुरुस्त इस्तेमाल करते हैं।
हरमुज़ को किसी और नाम से पुकारना वाकई एक संगीन गलती है। आलमी मंडी में तेल $126 फी बैरल तक जाने से आलमी मईशत की कमज़ोरी बेनकाब हो गई है और महंगाई का दबाव दोबारा बढ़ गया है। तेल की कीमतें बढ़ने से अमेरिका में महंगाई 102% पॉइंट्स तक बढ़ सकती है, जिसके नतीजे में मजमूई महंगाई दोबारा तकरीबन 5% की सतह के करीब पहुंचने का इम्कान है। जर्मनी में लॉजिस्टिक और मालबर्दारी के अखराजात भी बढ़े हैं, जिसके बाद सारिफिन के अशिया की कीमतों में इजाफा हो रहा है। मजमूई तौर पर जर्मनी में महंगाई 102% पॉइंट्स तक बढ़ सकती है, जबकि सनती पैदावार के मुनाफे के मार्जिन्स पर दबाव बढ़ा है। जबकि हिंदुस्तान में महंगाई पर असरात का अंदाज़ा 0.5 से 1.5% पॉइंट्स के दरमियान लगाया जा रहा है। आलमी मंडियाँ इस वक्त गिरावट का शिकार हो गई, जब ब्रेंट क्रूड इंटर डे में $126 से ऊपर 4 साल की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गया है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का कहना है कि खलीज फारस का मुस्तकबिल अमेरिका की मौजूदगी के बगैर रोशन होगा। तेहरान और खलीजी हमसाया ममालिक का मुक़द्दर मुश्तरका है, खित्ते में गैर मुल्की अनासिर के लिए कोई जगह नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने कहा कि आज खित्ते में दुनिया की सबसे बड़ी मुहिम और जारियत के 2 माह बाद और अमेरिका की अपनी मंसूबे में शर्मनाक नाकामी के बाद खलीज फारस और आबनाए हरमुज़ में एक नया बाब उभर रहा है। मुश्तबा खामनेई ने कहा कि आबनाए हरमुज़ सदियों से बहुत से शैतानों की लांच का मरकज़ रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा था कि फरवरी के आखिरी में शुरू होने वाले अमेरिका इसराइल जंग के बाद ईरानी अवाम ने अपनी आँखों से ईरानी अफवाज की साबित कदमी, चौकसी और बहादुराना जिद्दोजहद के खूबसूरत मज़ाहिर देखे हैं। इन्होंने दावा किया कि खलीज फारस का रोशन मुस्तकबिल अमेरिका के बगैर होगा। खित्ते में गैर मुल्की अनासिर के लिए कोई जगह नहीं, खित्ते के अवाम की तरक्की, सुकून और खुशहाली के लिए वक्फ होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर ने खित्ते में अदम तहफ़्फ़ुज़ का जिम्मेदार अमरीकी फ़ौज मौजूदगी को करार देते हुए कहा, अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों और इसके बाद की कार्रवाइयों ने खित्ते को गैर महफूज कर दिया है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का कहना है कि ईरान और अमरीका के दरमियान बातचीत में पाकिस्तान बाकायदा साबित किरदार अदा कर रहा है। उनका कहना है कि इस मामले में बहुत सी ममालिक मदद के लिए तैयार हैं, ताहम मुज़ाकरात में पाकिस्तानी बाज़ाब्ता सालिस है। इन्होंने एक टेलीविज़न इंटरव्यू के दौरान कहा कि अगर मुज़ाकरात की इनेकाद का फ़ैसला होता है तो हम इस बारे में बाज़ाब्ता तौर पर सबको मुतल्ला करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के हालिया दौरे रूस और सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात का हवाला देते हुए इस्माइल बक़ाई का कहना था कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मुआहदे के तहत ईरान और रूस के दरमियान सियासी, सिक्योरिटी, माशी शोबों में वसी ताउन मौजूद है। उनका मज़ीद कहना था कि मौजूदा हालात में ईरान मुख्तलिफ ममालिक के साथ बातचीत करके अपने मौक़िफ़ की वजाहत कर दिया है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि रूस और चीन के साथ इस सिफारती ताउन के नतीजे में ईरानी कौम मुत्तहदा की सलामती कौंसल में उनके बकौल खित्ते के बाज़ ममालिक की शरपसंदाना कार्रवाइयों पर काबू पाने में कामयाब रहा है। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेगसेथ ने कांग्रेस के अरकान को बताया कि ईरान के साथ जंग और हालिया बरसों में दीगर फौजी तनाज़ात के नतीजे में इस्तेमाल होने वाले अमरीका के इसलाह ज़खायर की बहाली में चंद महीनों से लेकर कई बरसों तक लग सकते हैं। अमरीकी वज़ीर ने कहा कि कई कार्रवाइयों में हमने अपने बेहतरीन हथियार इस्तेमाल करते हैं और बड़ी तादाद में करते हैं। इसी तरह इंटरसेप्टर्स भी इस्तेमाल हुए हैं। ये गोला बारूद रातों रात तैयार नहीं किया जा सकता। इन्होंने जोर दिया कि इसलाह ज़खायर की बहाली में हथियारों के निज़ाम की नौयत के लिहाज से चंद महीनों से लेकर चंद बरस तक लग सकते हैं। The targeting criteria and get briefed about it. And then also look at all of the files of all the strikes that have taken place. I've done that with the first 46 strikes or so. And I think there's a profound mismatch between what is occurring and the underlying assumptions in the legal opinion. And I would just encourage my colleagues to dig into this. To Secretary Hegseth and General Kane, the War Powers Resolution specifies that a war initiated by a president without congressional approval must be concluded within 60 days. It can be extended by an additional 30 days if, quote, the president determines and certifies to Congress in writing that unavoidable military necessity respecting the safety of the U.S. Armed Forces requires the continued use of such armed forces in the course of bringing about a prompt removal of such forces. We're right at the 60-day deadline. Is the president intending to either seek congressional authorization for the war in Iran or send us the legally required certification that he needs an additional 30 days to remove U.S. forces from the war? Just briefly on the previous question,
we do know that these are designated terrorist organizations, so we treat them like the Al-Qaeda of our hemisphere, just as a note. But that was not the question I asked. I know there's more to that question. I just think it's important for the public to understand that. There's no willy-nilly targeting of drug boats. We know exactly who these people are affiliated with. I was asking about what's on the boats. On Iran. Ultimately, I would defer to the White House and White House counsel on that. However, we are in a ceasefire right now, which our understanding means the 60-day clock pauses or stops in a ceasefire. They're not in. Yeah. It's our understanding, just so you know. Okay, well, I do not believe the statute would support that. I think the 60 days runs maybe tomorrow, and it's going to pose a really important legal question for the administration. We have serious constitutional concerns, and we don't want to layer those with additional. एक इंटरव्यू में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि हम ईरान में जंग जीत चुके हैं। ताहम उनका कहना था कि वो इस जंग को मजीद बड़े मार्जिन से जीतना चाहते हैं। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की बहरिया और फिजाइया तबाह हो चुकी है और मुल्क की क़यादत को भी ख़त्म कर दिया गया है। अमेरिकी इंतज़ामिया जंग के इब्तदाई दिनों से इस तर्ज के दावे करते आ रही है। ताहम इस मामले में मुताल्लिक़ खुफिया मालूमात से आगाह मुतादिद अमेरिकी हुक्काम ने गुज़िश्ता हफ्ते मीडिया को बताया, ईरान के पास अब भी वाइट हाउस और पेंटागन की जानिब से अवामी तौर पर तस्लीम करदा फ़ौजी सलाहियतों से कहीं ज़्यादा सलाहियतें मौजूद हैं। इन हुक्काम में से 3 ने मीडिया को बताया कि अमेरिका के अवाइल में जंगबंदी के आगाज़ तक ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों के ज़ख़ीरे का तकरीबन निसफ़ हिस्सा और इनसे मुंसलिक लॉन्च सिस्टम्स महफूज थे। इस दौरान सर ट्रंप का कहना था कि हमने सब कुछ तबाह कर दिया है, अगर हम अभी ईरान से निकल जाएँ तो भी ईरान की तामीर नौ में 20 साल लगेंगे। ताहम उनका मज़ीद कहना था कि ये काफ़ी नहीं। सर ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि हमें इस बात की ज़मानत चाहिए कि वो कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं करेंगे। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक ऑनर। ईरान के साथ जंग 60 रोज़ा डेडलाइन पहले ख़त्म हो गई। ट्रंप इंतज़ामिया का दावा, मैंने 8 जंगें रुकवाईं और कई मिलियन लोगों की जान बचाई। ट्रंप का नया दावा। अबनाए हरमुज़ को अबनाए ट्रंप करार देने पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा की अमरीकी सदर ट्रंप पर सख्त तनक़ीद, कहा यह संगीन गलती है। आलमी मंडी में तेल $126 फी बैरल तक पहुंच गया। आलमी मईशत की कमज़ोरी बेनकाब, महंगाई का दबाव दोबारा बढ़ गया। खलीज फ़ारस का मुस्तक़बिल अमेरिका की मौजूदगी के बगैर रोशन होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनेई का नया बयान। ईरान के साथ जंग और हालिया बरसों में दीगर फ़ौजी तनाज़ात के नतीजे में इस्तेमाल करदा अमरीकी असलाह ज़ख़ायर की बहाली में वक्त लगेगा। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा पीट हेग्सेथ का एतराफ़। नाज़रीन, इसी के साथ ही आलमी ख़बरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।